اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ بے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। बे इस तरह लिखा जाता है। कोई भी लफ्ज आप उर्दू का लिखिए तो उसका जो आखिरी हर्फ होता है, ये जो आखिरी हर्फ होगा ये पूरा होगा। ये बे है और उर्दू हरूफ तहजी का तीसरा हर्फ है। बे, अलीफ, पे, क्या हुआ? बाप। लेकिन जब हम इनको लिखेंगे तो बे अलीफ इस तरह और फिर लिखेंगे पे इस तरह। अजीज दोस्तों और नाजरीन, आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। हमने अब तक उर्दू के 3 हर्फ सीखे हैं, अलीफ, बे और पे। आज हम मज़ीद 3 हरूफ सीखेंगे, ते, टे और से। पहले ते। ते ये उफ़क़ी या हॉरिज़ॉन्टल हर्फ कहलाता है। इसका लिखना बहुत ही आसान है। जिस तरह आपने इससे पहले बे लिखा था उसी तरीके से ते भी लिख सकते हैं। एक दाएं से आप लिखना शुरू करें थोड़ी देर, उसके बाद इस तरह, और 2 नुक्ते आप यहाँ बना दीजिए तो ये हर्फ बन जाएगा ते। मैं आप लोगों से पूछ लूं कि बे के कितने नुक्ते थे? 1 और पे के 3। लेकिन ते के लिए सिर्फ 2 नुक्ते हैं। इसको भी वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि बे लिखते हैं। चलिए अब आपकी बारी है, आप लिखकर बताइए मुझे कि ते कैसा लिखते हैं, आपके लिए। और नाजरीन, आप भी अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए ते। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ते बिल्कुल वैसा ही लिखा होगा जैसे मैंने लिखा, यानी दाएं से बाएं तरफ। अक्सर तलबा जो गैर उर्दूदान हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। बाज़ तलबा ये भी गलती करते हैं कि पहले नुक्ते लिख देते हैं और उसके बाद वो इस शक्ल को बनाते हैं। ये सारी गलतियां हैं जो आमतौर पर हमारे तलबा करते हैं। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि ते उर्दू हुरूफ तहजी का चौथा है, ये भी दाएं से बाएं लिखा जाता है। अब आइए हम इस पर हरकत दें। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि ज़बर की आवाज़ दें, ज़बर की अलामत बनाएं तो आ की आवाज़ आती है, और ज़ेर की अलामत से ई की आवाज़ आती है, और पेश की अलामत से ऊ की आवाज़ आती है। तो ते ज़बर ता, ते ज़ेर ती और ते पेश तू। तो ये देखिए कि ते है ता, ती और तू। अब चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर हमें इस हर्फ को दूसरे हरूफ से मिलाना है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये ते है, लेकिन अब हम अलिफ से इसे मिलाना चाहते हैं तो इसको हम आधे से ज़्यादा काट देते हैं, और काटने के बाद इसकी शक्ल बन जाती है इस तरीके से। अगर पूरा हर्फ हुआ तो फिर अलिफ का लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ते इस तरह आपने लिखा है तो फिर यहाँ अलिफ जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये ते है और फिर इसमें अलिफ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ते अलिफ ता। तो अब आपके सामने आ गई 2 शक्लें। एक शक्ल ये थी जिस पर आपने ज़बर दिया, एक शक्ल ये है जिस पर आपने ज़ेर दिया, और एक शक्ल ये है जिस पर आपने पेश दिया था। इसी शक्ल को हम छोटा करते हैं
ये। इससे पहले हमने 3 हर्फ सीखे थे, एक अलीफ, बे और पे। अब आपके सामने पूरा मैदान खुला है। अब आप ये जो सीखे हुए हुरूफ हैं उनको इनके साथ जोड़कर अल्फाज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दूंगा बे अलिफ बा या ते अलिफ ता। देखिए इस वक्त हमारे पास 4 हुरूफ का सरमाया है, अलिफ, बे, पे और ते। इन 4 हुरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़कर आप कई अल्फाज बना सकते हैं। मैं आपको वक्त दे रहा हूं कि आप जितने अल्फाज बना सकते हैं इस वक्त बनाइए। चलिए अब आप बताइए मुझे। देखिए कि हमारे जो पहले हुरूफ थे अलीफ, बे और पे, और जो नया हर्फ हमने सीखा है वो ते है। किसी ने कुछ लफ्ज बनाए हैं? हाँ, बता है। ये देखिए बता है। अगर आपने इस पर जबर दिया तो ये बता होगा। फर्ज कर लीजिए आपको बिता बनाना है तो नीचे जेर देना है। चलिए आपने कुछ पता है। फिर वही बात है, पता पिता भी बन सकता है। कैसे? नीचे अगर हम एक जेर दे देंगे तो पता पिता भी बन सकता है। कोई और लफ्ज किसी ने बनाया है? बात। जी हाँ, तो आपने बा लिया और फिर यहां से ते लिया तो ये बन गया बात। और कोई? तबाह है। तबाह पूरा लफ्ज नहीं बन सकता क्योंकि उसमें है की जरूरत है। तब हाँ ये बन सकता है। 2 हर्फ पे लफ्ज ये रहा ते और पे। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि उर्दू लफ्ज का जो आखिरी हर्फ होता है वो हमेशा पूरा लिखा जाता है। मैं फिर एक बार आपको बताऊं कि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर शुरू में लिखा जाता है जबकि उर्दू में आखिर में लिखा जाता है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि बे पूरा लिखा हुआ है। कुछ और अल्फाज? ताब है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये रहा ताब, ते अलिफ बे ताब, ते अलिफ बे ताब। इसको आप छोटा करके सामने लगा देंगे तो ये बन जाएगा बता। मेरा ख्याल है इस मुकाम पे मैं आपको एक बात की वजाहत करता चलूं, वो ये है कि ये उसकी शक्ल है और यहां सिर्फ नुक्तों के बदलने की वजह से लफ्ज बनते जाते हैं, लफ्ज बिगड़ते जाते हैं। जैसे अगर आपने यहां नुक्ता लिखा तो ये बन गया बे, और यहां आपने 2 नुक्ते लिखे तो ये बन गया ते। तो बे ते अलिफ बन गया बता। अगर इसके बजाय आपने यहां 3 नुक्ते लिखे तो ये बता, तो इसका मतलब यह हुआ कि सारा खेल नुक्तों का है। शक्ल तकरीबन वही होती है जो पहले से होती है, लेकिन आप उसमें सिर्फ नुक्तों को बदलकर आवाज़ बदल सकते हैं, अल्फाज बदल सकते हैं, माने बदल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू में नुक्तों की इतनी नज़ाकत है कि एक नुक्ते के इधर उधर हो जाने से खुदा जुदा हो जाता है। तो एक नुक्ता ख़ै का ऊपर हो तो खुदा है, वही नुक्ता नीचे आ जाए तो खुदा जुदा हो जाता है। तो सारा खेल नुक्तों का है, इस पर आप ख्याल रखिए। तो आइए हम एक और हर्फ की तरफ चलते हैं और वो है, अभी हमने सीखा अलिफ, बे, पे और ते। अब आइए बे के कबील ही का एक और हर्फ सीखते हैं, ते। ते भी बे की तरह ही लिखा जाता है। ये भी बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं, दाएं से बाएं की तरफ। आपने दाएं से कलम रखा और इस तरफ खींचकर
बनाया और एक अलामत टे। मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि टे भी बे पे ते की तरह एक हॉरिजॉन्टल लेटर है या उफ़क़ी हर्फ हम इसे कहते हैं। लिखने का तरीक़ा आपने अभी देखा, बहुत आसान है। अब आइए आपकी बारी है, चलिए आप लिखकर दिखाइए। आपने अब तक बे पे ते लिखा है, लिहाजा ते आपने बड़ी आसानी के साथ दाएं से बाएं लिखा और फिर यह गलती भी नहीं की कि पहले उसकी अलामत बनाई और उसके बाद उसकी शक्ल बनाई। जी नहीं, आपने पहले उसकी शक्ल बनाई, उसके बाद उसकी अलामत लिखी। कहने का मतलब है कि आपने बे के कबील के अल्फाज लिखने सीख लिए हैं। ये रहा टे। मैं एक और बात आपको याद दिला दूं कि आ, ई और ऊ की आवाज़ें निकालने के लिए हम इस पर ज़बर, ज़ेर और पेश देते हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों को खबरदार कर रहा हूं और ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये सिर्फ सीखने के मरहले तक ही है, ज़बर, ज़ेर और पेश। एक मर्तबा आप इन लफ्ज़ों को देखने और उनको सुनने समझने के आदी हो जाएंगे तो फिर आपको इन ज़ेर, ज़बर और पेश को हर बार देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम इसकी बदलती हुई शक्ल को देखें। मैं फिर याद दिला दूं आपको कि हमने बे इस तरह काटा था और पे इस तरह काटा था और ते को इस तरह काटा था, तो ते को भी इसी शक्ल में हम इस तरह काट सकते हैं। ये टे है। हुरूफ को क्यों हम काटते हैं, इनको छोटा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम दूसरे हुरूफ को उनके साथ जोड़ सकें। मसलन अगर आप अलिफ को जोड़ना चाहेंगे तो अगर ये लफ्ज़, ये हर्फ कटा हुआ है तो बहुत आसानी के साथ आप इसको इस तरह जोड़ सकते हैं। तो ये बन गया टा। एक मशहूर कंपनी का नाम बना सकते हैं, किस तरह से? टाटा है। तो अगर आपने इसको इस तरह लिखा तो ये बन जाएगा टाटा। टाटा की तरह एक और मशहूर कंपनी है बाटा। और अल्फाज आप बना सकते हैं। बटा, एक और लफ्ज बाट, बाट। कोई और लफ्ज? टब है। यहां मैं आपको बता दूं कि टे से बहुत सारे अंग्रेजी के अल्फाज ही बन पाएंगे। इस वक्त हमारे पास जो सरमाया है अलिफ, बे, पे, ते और टे, तो इन हुरूफ की बुनियाद पर हम सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाज बना सकते हैं। गौर करके देखिए, कुछ और अल्फाज हैं। टिप है, नीचे जेर देंगे आप तो ये टिप बनेगा, लेकिन जेर निकाल कर आप जबर दीजिए तो ये बनेगा टप। टप टप आंसू गिर पड़े, टप टप। तो ये टप भी बन सकता है, टिप भी बन सकता है। टे, अलिफ, पे, ताप। कोई और लफ्ज? तिब्बत। तिब्बत है वो ते से बन सकता है, ते, बे, ते, तिब्बत बन सकता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ते से कुछ और लफ्ज? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अलिफ मदा, ते अलिफ ता, आटा। आटा खातून है इसलिए आटा याद आया आपको। कोई और लफ्ज? बहरकैफ, अगर आप गौर करेंगे तो मुमकिन है दो चार और लफ्ज आपको मिल जाएं। अब आइए इस सिलसिले का आखिरी हर्फ सीखें, से। से उर्दू हरूफ तहजी का छठा हर्फ है और बे, पे, ते की तरह यह भी हॉरिजॉन्टल लेटर या उफ़क़ी हर्फ है। और इसके लिखने का तरीक़ा बहुत आसान है, क्योंकि आप बे, पे, ते लिखना सीख चुके हैं। तो उसी तरह की एक शक्ल बनाइए और उसके ऊपर 3 नुक्ते दे दीजिए, तो ये बन जाएगा हर्फ से।
अब फिर एक बार खबरदार करूं मैं कि इसे आप दाएं से बाएं लिखेंगे, बाएं से दाएं नहीं लिखेंगे। दूसरी बात ये कि पहले नुक्ते नहीं देंगे, पहले शक्ल बनाएंगे, उसके बाद आप नुक्ते देंगे। उम्मीद है आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी। अब मैं आपको एक आध लम्हे का वक्फा देता हूं और आप इस वक्त लिखकर बताइए से। आप लिखिए। अब देखिए कि इसकी आवाज़ों में थोड़ा सा हम फर्क कर सकते हैं जेर ज़बर और पेश के साथ। से ज़बर सा, से जेर सी और से पेश सू बन जाएगा। और जहाँ तक इसे दूसरे हुरूफ के साथ मिलाने वाली बात है, ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे बे की शक्ल कटकर बनती है, पे की शक्ल कट के बनती है, ते की शक्ल कट के बनती है, उसी तरीके से की शक्ल भी कटकर कुछ इस तरह बन जाती है। अब ये दूसरे हुरूफ के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अलीफ अगर इसे जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल बनेगी इस तरह, ये हो जाएगा सा, से अलीफ सा, ये बन जाएगा। अब हमने देखिए कि इस वक्त कितने 5 हुरूफ सीखे हैं। गौर करके देखिए, से को उनके साथ जोड़िए और अगर हो सके तो कुछ अल्फाज बनाइए। साबित। साबित है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले हमने सीखा था बे और उसके बाद ते, तो बे की छोटी सी शक्ल यहाँ और उसके बाद लिखा ते, तो ए बन जाएगा लफ्ज साबित। कोई और लफ्ज? मेरे जहन में एक लफ्ज है, मैं उसके हरूफ को तोड़ मोड़ कर आपके सामने लिखता हूं। अगर आप उसको जोड़कर कोई लफ्ज बना सके तो लफ्ज आपका हुआ। आप लोग कोशिश कीजिए और नाज़रीन आप भी कोशिश कीजिए। हमारे पास 4 हर्फ हैं, ते, से, बे और अलीफ। इससे एक बहुत खूबसूरत सा लफ्ज बनता है, बनाएं। चलिए मैं आपको आपकी मदद करता हूं। ये लफ्ज शुरू होता है से। एक और मदद करता हूं, खत्म होता है ते से। तो ये लफ्ज है से बे अलीफ ते सिबात। चलिए बड़ी मुश्किल से हमने 2 लफ्ज बनाए से के साथ। वाकया ये है कि से के साथ बहुत ही कम अल्फाज बनते हैं और हमारा सरमाया इस वक्त सिर्फ अलीफ बे पे ते टे ही है, और ते के साथ तो से का जुड़ना मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा बन नहीं सकता। ते के साथ और बे के साथ, पे के साथ भी बहुत मुश्किल से कोई एक लफ्ज बनता हो तो बनेगा। लेकिन बच गए हमारे पास अलीफ बे और ते के साथ जोड़ेंगे तो एक लफ्ज ही बन सकते हैं। इसमें से मैं इसको निकाल देता हूं। अब बनाइए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको से यहां निकालिए, एक नुक्ता इधर और एक नुक्ता इधर, सिब्त है। ठीक है, साबित, सिब्त और सबात। हमने अभी एक हर्फ सीखा है से और उससे बनाया है एक लफ्ज साबित। हमें मालूम है कि से के साथ बहुत सारे अल्फाज बनाने मुश्किल हैं, फिर भी हमने आपकी मदद के लिए यहाँ हुरूफ के 3 मजमूए लिखे हैं। ये बिखरे हुए हैं, आप इन्हें जोड़कर बामाने अल्फाज बना सकते हैं। पहला मजमुआ है ते, बे, अलीफ और से का। दूसरा है से, अलीफ, अलीफ, बे और ते का। और आखिरी है से, ते, बे का। हमें कभी उम्मीद है कि आप इन बिखरे हुरूफ को जोड़कर बामाने अल्फाज बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज़।